ابھی آنے سے پہلے میں ریٹنگ پڑھ رہا تھا ایک، اس کے اندر سب سے زیادہ جو پاکستانی جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں سب سے زیادہ آپ کی ریٹنگ ہے، مثلا آپ کو سنا جاتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو دیکھ لیں، وہ ایک چیز پہ متفق ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ قادیانی کا لقب دیتا ہے، کوئی آپ کو فتنہ کہتا ہے، کوئی آپ کو فسادی کہتا ہے، آپس میں اتنے اختلافات ہیں، آپ کے معاملے میں سارے اتنے یک قلب اور یک جان کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ جن علماء کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی خود نیچر فساد والی ہے، ورنہ مجھے بتائیں میرے بارے میں کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی پبلکلی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ بالکل، یعنی میرے بعد اگر ویورشپ ہے کسی کی پاکستان یا ورلڈ لیول کے اوپر تو طارق جمیل صاحب ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ان کی زیادہ تھی، اچھا کیا ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی؟ مولانا الیاس قادری صاحب کی، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، مولانا تقی عثمانی صاحب کی، کچھ انڈائریکٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں لیکن وہ ایمبیگوس ہیں، مجھے مخاطب نہیں اس میں کیا ہوا، انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹس دی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے سچائی کی لیکن بات رسوائی کی ہے۔ یہ جو آپ کو باقی علماء نظر آ رہے ہیں نا، ان کی کوئی وقت اس حوالے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنے مکتب فکر میں ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں یا انہیں لوگ ایک ٹیسٹ کے طور پر سنتے ہوں، لیکن جو بڑے بزرگ ہیں نا، جو مکتب فکر کے نمائندہ ہیں، وہ تو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے جو ہے وہ ساجد میر صاحب ہیں، اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں، ان چاروں میں سے کسی کی میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ مفتی منیر صاحب نے ایک جنرل مضمون لکھا تھا دنیا اخبار میں، اور وہ مضمون جو انہوں نے لکھا وہ میری کامیابی تھی، کیونکہ اس مضمون کے اندر انہوں نے وہ باتیں بھی مان لی جو میں سالوں سے ان کے مکتب فکر کو منوا نہیں سکا۔ مثلا انہوں نے یہ بات مان لی کہ کسی نبی کا اختیار نہیں کہ کوئی معجزہ دکھا سکے، تو انجینئر صاحب جو ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلا ہلز پہ رکھ لو تو ہم تمہارے بزرگوں کی اس کرامت کو مان لیں گے، قرآن کی کرامت تو ہم مانتے ہیں، تخت بلقیس والا واقعہ، لیکن وہ تو ہوا نا، آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کلیم کر رہے ہو وہ بھی کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ کافر بھی انبیاء سے کہتے تھے یہ کر کے دکھاؤ، تو انبیاء اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، اللہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ بات ہم بریلویوں کو پوری زندگی نہیں منوا سکتے تھے کہ نبی کا بھی اختیار کوئی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا اپنی مرضی سے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کی تو فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور باقی کاموں میں یوز کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اسے نیچے پھینک، جب نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے اور مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے اس آسا کو اژدہا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا۔ دوسری بات، اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نہ۔ تیسری بات، یہ ان کی زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا، جس طرح چھوٹا بچہ جب کبھی ماچس کی تیلی کو پہلی دفعہ جلائے تو وہ ڈر جاتا ہے، تو جب انبیاء کرام کوئی کام خود کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا امر کون ہوتا ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ جو ہم نے لکھا ہے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشائی کوئی نہیں۔ یہ بابوں کو ہم ذلیل نہیں کر رہے، ہم ان کو پروفٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ پروفٹ تو اپنی بیٹی سے کہیں، بخاری مسلم میں حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی نا غلط کاموں کی وجہ سے، میں تیرا باپ بھی تجھے نہیں چھڑوا سکتا۔ حالانکہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن نبی علیہ السلام بیسیکلی ہمیں سنا رہے تھے کہ اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیری رابعہ بصریہ تشائی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں زبردستی لے کے جا سکتا اگر اس کے اعمال صحیح نہ ہوئے۔ آپ کے بعض ناقد کہتے ہیں کہ یار علی بھائی باتیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور صحیح ہمیں منطق اور دلیل کی بنیاد پہ قائل کرتے ہیں، لیکن جو ان کا لہجہ ہوتا ہے تھوڑا سا تکبرانہ ہوتا ہے، لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، تو جو دوسرے مکاتب فکر کے جو فالوورز ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ ہرٹ کوئی نہیں ہوتے میرے بھائی، وہ تو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر جب سوشل ایتھکس ہیں دنیا کے اندر، اخلاقی ویلیوز ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، اس میں تو آپ کسی کے ساتھ اوئے تو کر کے بات کریں اور اگلا تو آپ کی شکل نہیں دیکھتا، تو اگر یہی بات ہے تو لوگ میرے ساتھ کیوں اٹیچ ہو رہے ہیں؟ اور ان پڑھ لوگ نہیں ہو رہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، اس کا مطلب ہے مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اور میرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے ہیں، میں تو ان کا ایک ٹیچر ہوں، تو کوئی بات تو ہے نا۔ اچھا اب یہ کہنا میرا لہجہ سخت ہے، یہ بالکل ان کی بات غلط ہے۔ اس پوسٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پیشن کے انداز میں بیان کرنا ہے، جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب کرتے تھے۔ اب لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا سٹائل بھی یہی ہے، تقریر کرنے کا۔ جو نبی علیہ السلام کی اخلاقیات بیان کرتے ہیں نا، آپ نجی محفل میں مجھ سے ملے، میرے اخلاقیات وہی ہیں، لیکن جب میں ٹیچنگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں پھر اس کا ڈیکورم ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اسی طریقے سے ہی بات بیان ہوتی ہے۔
मुस्लिम शरीफ में 2005 नंबर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी जुम्मे की या ईद की तकरीर करते, आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती और गुस्से में इजाफा हो जाता, गोया कि एक जर्नैल अपनी आर्मी को तैयार कर रहा हो। नबी अलैहिस्सलाम इस तरह तैयार करते और कहते मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजेंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां, यानी फिक्र आखिरत पे भी बयान करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आवाज बुलंद, आंखें सुर्ख। आप लोग तो समझते होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम का जो तकरीर का अंदाज है वो गामदी साहब वाला या तारिक जमील साहब वाला होगा, नहीं, डॉक्टर सरार साहब वाला होता था। अलबत्ता जो निजी गुफ्तगू है, आप मेरे साथ बैठें, खाना खाएं, चाय पिएं, मेरी तो बड़ी झोली तबीयत है, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी एक रिक्वायरमेंट है और इसी की वजह से दुनिया में चेंज आई है। दुनिया में चेंज आई इसी स्टाइल की वजह से कि मैं लोगों को झंझोड़ता हूं कि यार सीरियस लो, तुम्हें मरना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। हां, अगर मैं कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करूं, कोई गाली दूं, तो वो आप मेरे ऊपर गिरफ्त कर सकते हैं। रह गया वो अंदाज, तो वो अंदाज पैशन वाला, और फिर इख्तलाफी मौज़ूआत में बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पे आप मेरी वीडियो देखें, सुबह शाम के अज़कार में देखें, फर्ज नमाज के बाद अज़कार, रमजान के जब मैं छोटे छोटे मसाइल समझा रहा रहूंगा आपको, आप मेरी वीडियो देखें तो उसमें तो आपको कोई ऐसा एग्रेशन नजर नहीं आएगा। क्यों? लेकिन जैसे ही अकीदे खत्म नबूवत, अकीदे तौहीद स्टेट पे लग रहा है, यानी आप आगे हमें ये कहेंगे फलां बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे मुरीद हो जाओ कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने मुरीदों को जन्नत में ना ले जाऊं, तो मैं तो फिर उसे चैलेंज करूंगा कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, नबी तो अपनी बेटी को भी कह रहे हैं, तो तुझे किसने अथॉरिटी दी है कि तू रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी कर? हमारा ये लहजा गद्दारों के लिए होता है जो दीन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और मेरा ये दावा है कि इस टॉपिक के ऊपर इस प्लेनेट अर्थ पे मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। बाकी लोग तो काफिर कहते हैं एक दूसरे को, मैं तमाम के पीछे नमाजें पढ़ता हूं, उन्हें चंदे देता हूं और मुसलमान समझता हूं। इससे ज्यादा नजदीक वो सब मुसलमान जी सब है। मेरे नजदीक बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया तमाम अपनी कमजोरियों के बावजूद मुसलमान है, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इनकी गलतियों की इन्हें सजा दे, वो उसकी मर्जी, या बगैर सजा दिए जन्नत में भेजे। मैं इन सबको मुसलमान और जन्नती समझ। चलिए भाई, एक ये भी अलमिया है कि हम बच्चे के कान में अजान देने से नमाज जनाजा पढ़ाने तक एक मौलवी के और इमाम मस्जिद के मोहताज हैं। इसका जिम्मेदार सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सोसाइटी भी है, उलमा तो है ही है, सोसाइटी भी है ना जी। सोसाइटी ने अपने लिए जो अभी यानी सोशल वैल्यूज जब इंसान ने सीखना शुरू की हैं, तो ट्रैफिक के कवानीन भी अच्छे बना लिए, पुलिस का निजाम अच्छा कर लिया, जुडिशरी का निजाम अच्छा कर लिया, और अच्छे क्वालिफाइड लोग बिठाए। दीन की सीट पे क्या इन्होंने कोई पढ़ा लिखा बंदा लाके बिठाया? आप कहते हैं ना मदारिस के पढ़े हुए, 90% से ज्यादा मसाजिद के जो इमाम है ना, वो मदरसे से पढ़े हुए भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ आखिरी 20 सूरतें याद की हुई हैं जुबानी, वो तो आलिम दीन है ही नहीं है। हाँ जी, वो तो आइम्मा है। इसलिए आप देखें 2 टर्म्स यूज होती हैं, आइम्मा मसाजिद और खुतबा। खुतबा वो होते हैं जो जुम्मा पढ़ाते हैं, उनमें से भी अक्सर जाहिल है सवाए चंद लोगों के। इसलिए आप देखते हैं कि जो मस्जिद 5 वक्त में नमाज का सिस्टम जहां राइज है ना, वहां जुम्मा वो वाला मौलवी नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो मौलवी होते ही नहीं है, वो सिर्फ एक इमाम मस्जिद है जिसने चंद एक सूरतें रटी हुई हैं, इसलिए वो जुम्मा नहीं पढ़ा सकता। जुम्मे के लिए बाहर से कोई मौलवी आता है, वो बहुत थोड़े हैं, और वो जो बाहर से भी आते हैं उन्होंने भी वो 12 तकरीरें किताब खरीदी हुई है, वो याद की है, हर 12 जुम्मों के बाद वो तकरीर रिपीट हो रही होती है, चंद एक बातें। ये तो अब साइंस की बरकत से और इस मॉडर्न एज की बरकत से लोगों को पता चला है कि यार कुरान और सुन्नत की तरफ जाना है। हालांकि ये किताबें 1200 साल पहले हदीस की लिखी गई, कुरान पाक मौजूद था, लेकिन साइंस की बरकत से, सॉफ्टवेयर की बरकत से अब मैनेजेबल फॉर्म में लोग लेके आए, इस्लाम 360 बना, लोग काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। हमने कोई ऐसी चीज नहीं लिख के अवाम के हवाले की जो मेरा दावा हो कि मैंने नबी इस्लाम से सुनी है या मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है। मैं तो वही बातें कर रहा हूं जो आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इवन मदारिस में पढ़ते हैं कि कुरान के बाद अहले सुन्नत की बुनियादी किताबें बुखारी और मुस्लिम है। सिर्फ ये हुआ कि इस दौर में आके उससे उन्होंने स्टैंडर्डाइज करके नंबरिंग लगा दिया हदीस को, और वो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के अंदर। और मैं हदीस का नंबर बताता हूं और कहता हूं काउंटर वेरीफाई करें। अब जब वो उसमें से निकलता है तो लोग जाके अपने मौलवियों के गले पड़ते हैं कि यार आपने तो हमें दीन बताया था, वो किधर लिखा हुआ है? वो आगे से बजाय ये बताने के वो कहां लिखा है, क्योंकि पता है कहीं नहीं लिखा हुआ, और ये भी नहीं कह सकते बुखारी में गलत लिखा हुआ है। वो कहते हैं किन्हों सुने, मुझे पता लग गया कि स्टेशन तू बोल रहे हैं। तो इस तरह करने से क्या वो अल्लाह ताला के सामने ये मुझे बताइए, अल्लाह के सामने ये जवाब दे सकते हैं कि मैंने इसे दीन का मसला इसलिए नहीं बताया कि मैं पूछा सी कि तूने कुछ सुना? हम तो देखते हैं जिनके थोड़े से मुरीदैन होते हैं या थोड़ा सा उनका निज़ाम चलना शुरू होता है, लाइफस्टाइल बदल जाता है और गाड़ियां बदल जाती हैं, कच्ची आबादियों से पक्की आबादियों में मुंतकिल हो जाते हैं। आपको तो लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, आपको फॉलो करते हैं, ना तो आप अपनी मोनेटाइजेशन करवाते हैं पेजेस की, ना वहां से अर्निंग लेते हैं। तो क्या वजह है? आपको जरूरत नहीं है पैसों की, इसकी वजह क्या है? मैं चूंकि इसे जायज नहीं समझता ना, आप किसी भी आलिम दीन से पूछें, आप तो बाकी आलिम दीन सारे देखें उनकी जिम्मेदारी, वो खुद अल्लाह को जवाब देंगे। जो उलमाए दीन अकीदा तौहीद और खत्म नबूवत में करप्शन कर सकते हैं, माल की करप्शन तो बड़ी छोटी चीज है, ठीक है।
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बकायदा रिटर्न में फतवा आ गया कि मोनेटाइजेशन जो वीडियो एड्स के जरिए इसकी कमाई हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका इख्तियार नहीं होता। आप कैटेगरी तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा इश्तिहार आएगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तो अल्लाह के बंदो शेविंग ब्लेड के इश्तिहार में भी औरत दाखिल की होती है उन्होंने, जिसका ताल्लुक मर्द के साथ है प्योरली। गाड़ी का इश्तिहार है तो उसमें औरत दाखिल की होती है, तो उन्होंने तो फतवा दे दिया। तो मैंने तो गन पॉइंट पे तकी उस्मानी साहब से फतवा नहीं दिलवाया। वैसे आम आदमी से भी आप पूछें, क्या बेपर्दा औरत को अपने घर में नाचता हुआ दिखा के इस पे चंदा इकट्ठा करना कि लोग तमाशबीन आए तो कमाई लाल होगी, सारे कानों को हाथ लगाएंगे? तो यही काम तो वीडियो में हो रहा है। तो फिर इतना माशाल्लाह आपका निजाम चल रहा है, सेटअप है इतना, तो ये अखराजात ये कैसे पूरे होते हैं? ये पैसा कहां वो से मैं आता है? मुसल्ला उठाता हूं उसमें से सोना निकाल लेता हूं। ये भी तो यही क्लेम करते हैं ना। और दूसरा यार, मैं इधर कौन सा ऐसा निजाम चला रहा हूं, मैंने कोई लंगर तो नहीं उस तरह खोला भाई यार। बच्चे फिर भी अल्लाह के बंदो, समोसा दूध पति हमने खाया। हाँ, तो सरकार मैंने कोई यहां आपके सामने कोई फ्राई फिश तो नहीं रख दी ना यार, इतना लगे लत्थे तो नहीं रख दी समोसा भी नहीं खुआ सकते। ठीक है, एक नॉर्मल खुराक ही खिला रहे हैं ना। और दूसरा, इतवार वाले दिन ये होता है, ये तो नहीं रोजाना कोई लंगर चल रहा है और कोई बहुत बड़े लेवल का इधर खर्चा है, ऐसा तो नहीं, बस सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर है। प्लस यहां पे जितने हमारे लोग हैं ना वॉलंटियर हैं, यानी ये हमारे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग करते हैं फरहान भाई, ये वॉलंटियर फीस भी ले है। जी जी जी। अब मुझे अगर कैमरामैन रखना पड़े तो मैं तो 40-50 हजार रुपया पे करूंगा ना उसे, कि पूरा इतवार वो मेरे साथ होता है फंक्शन के लिए। इस तरह जो एडिटिंग का काम करते हैं हमारे एक और, उनका नाम भी फरहान है, तो अब आईटी का बंदा मैं 35-40 हजार रुपए पे रखूं तो वो तो फ्रीली इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं जो कुछ बोलता हूं और ये वीडियोस बनती है, मैं भी नहीं किसी से पैसे ले रहा। तो हमने अपने चैनल को वीडियो एड्स के ऊपर मोनेटाइज नहीं किया हुआ, सिर्फ इमेजेस के ऊपर किया हुआ है। लेकिन वीडियो एड्स में हम मोनेटाइज करें तो हमारी कमाई 60 से 70 लाख 80 लाख महीने की बनती है। लेकिन जो इमेजेस के ऊपर आप करते हैं वो इसका 10वां 15वां हिस्सा भी नहीं बनती। बहरहाल वो हमें यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती है कि हम ये छोटे मोटे जो अपने अखराजात हैं उसमें से मैनेज कर लेते हैं। जान को इतना खतरा है आपके, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तो कोई ना गार्ड्स आपके साथ हैं ना सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते, होते हैं गार्ड्स। अच्छा, होते हैं, अल्लाह के भी होते हैं और अल्लाह के बंदों के भी गार्ड्स होते हैं साथ, बेफिक्र है। लोग मुझसे पूछे थे कि अली भाई से पूछेगा कि कितने बड़े घर में रहते हैं, तर्ज जिंदगी क्या है, गाड़ी कौन सी है इनके? मेरे भाई गाड़ी तो मेरे पास नहीं, मेरी जरूरत ही नहीं गाड़ी। गाड़ी है ही नहीं आपके नहीं, पास? गाड़ी है ही नहीं है, गाड़ी को रखनी है मैंने, मेरे पास एक मोटर बाइक है, मेरी जरूरत पूरी कर रही है, गाड़ी को रखनी तो है। घर मेरी दादी माँ के नाम पे है, वो 3.5-4 मरले का घर है, उसमें हम रह रहे हैं। 3.5-4 मरले के घर जी में जी, आप रहते हैं? हाँ जी, वो भी पुराने स्टाइल का बना हुआ है। वो ऑलमोस्ट कोई 60 साल पुराना है। बीच में मेरी जब शादी हुई तो एक उसके पोर्शन को थोड़ा सा दोबारा तामीर किया था, उसको भी तामीर किए हुए 20 साल हो चुके हैं उस हिस्से को। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। दुनिया की हर फैसिलिटी मेरे घर में मौजूद है, हाई स्पीड इंटरनेट है, ठीक है जी, सोलर भी मैंने अब लगवा लिया है, और जमीन में पानी तो जेलम में 25-30 फुट पे वैसे ही आ जाता है, बोरिंग भी मौजूद है, और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं। और मैं इधर उधर ट्रैवलिंग तो करता ही नहीं हूं, इसलिए मुझे और ट्रैवलिंग जो है भी है वो भी अनडिक्लेयर्ड होती है, तो जरूरत नहीं। देखें, इस तरह के काम करने के बाद फिर आप जाहिर है कि अपनी लाइफ को वनरेबल इस तरह तो नहीं कर सकते, आप पब्लिकली घूमें, तो वो चीजें तो कंप्रोमाइज हुई हैं। लेकिन इतना अरसा याशी की है ना यार हमने। देखें, यूनिवर्सिटी में 5 साल तक मर्जी की जिंदगी गुजारी है। मर्जी से मुराद ये है कि घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ थे। तो लोगों की तो जिंदगी 45 साल होती है, मैं तो 45 साल से ज्यादा गुजार चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अपने इस सारी जो एफर्ट है वो दीन के हवाले से कर रहा हूं जी। मुतमईन इसलिए हूं कि कुरान में है कि हमने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में खरीद ली हैं। मोमिनीन को चाहिए कि इस बैत के ऊपर, इस कारोबार के ऊपर खुशियां करें कि अल्लाह से उन्होंने सौदा किया है, अल्लाह उन्हें जन्नत देगा, वो अपनी जान और माल